मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल। तन और मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल। काउंसलर को बताए अपना हाल, काउंसलर को बताए अपना हाल। जो सुने हमारे मन के सवाल। सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन। सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844 844 0632। नंबर एक बार फिर सुने 844 844 0632। Namaskar, good evening, a very warm welcome to all of you joining you today. I am Nupur Shresht and I extend my warm greetings to all those watching us live on eVidya channel number 6 to 12 and also those who are connecting with us through our YouTube channel, that is ncertofficial. And this is our special session Sahyog. Sahyog sessions are held under MANODARPAN, initiative of Ministry of Education as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan for providing psychological support to teachers, students and parents across the country. And today's topic is understanding mental health and well-being. And to give insights on this topic, joining us today, our experts are Dr. Sushmita Chakrabarti, Assistant Professor, Department of Educational Psychology and Foundations of Education. Namaste, ma'am. Namaskar. Very warm welcome. And also we have with us practicing counselor Rajesh Kumar. Namaste sir, स्वागत है आपका. Ma'am, good evening. And viewers, if you have any query related to our topic, you can give us call on this number 844-844-0632 and you can also mail us and you can see the mail ID flashing on your screen and you can directly connect with us. As I said, today's topic is understanding mental health and well-being. And जब भी हम बात करते हैं mental health and well-being की, तो we only focus about our physical health mainly, and we hardly pay any attention to our mental health, and which is very important. But somehow we forget that. और जब भी हम बात करते हैं मैम मेंटल हेल्थ की, तो यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोगों की हम बात करते हैं, चाहे वो अगर उसमें हम बात करें पेरेंट्स की, टीचर्स की या स्टूडेंट्स की। और शुरुआत की स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आजकल स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी से डील कर रहे हैं, कई फैक्टर्स हैं जो उनको परेशान करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डॉक्टर सुष्मिता कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग फैक्टर्स फॉर द स्टूडेंट्स इन प्रेजेंट सिनेरियो. We'll talk about the current scenario. Yes. Thank you, Nupur. So, my dear viewers, yes, from today onwards, we are celebrating the Mental Health Week. In fact, tomorrow is the International Mental Health Day, and throughout the world, we celebrate this day, the 10th of October every year, as the Mental Health Day. हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक ये दिन जैसे बाकी और भी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कोई ना कोई एक दिन खास होता है दिन इस साल का, तो ये दिन खास है मानसिक स्वस्थता के लिए। लेकिन ये मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग की जो बात है, ये हमारी एवरीडे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है. नुपुर, इफ़ वी कैन जस्ट टॉक अबाउट दिस प्लेजेंट प्लेस दैट वी आर इन, अगर इस वक्त मेरी मनोस्थिति खुशनुमा नहीं है, इफ़ आई एम नॉट in a state of well-being mentally, emotionally, जी, तो मेरा preparation चाहे जितना भी अच्छा हुआ हो, as one of the panelists for today's session, जी, मेरा performance उतना अच्छा नहीं हो पाएगा. जो अंदर की एक खुशी है वो झलक नहीं पाएगा, neither in my action, my words, my verbal and non-verbal expressions. The same thing happens with our students also. Right. No matter how much हम तैयारी कर ले अपनी पढ़ाई का, इम्तहान का, नॉलेज बेस को हम जितना भी परफेक्ट करने की कोशिश कर ले, अगर साथ साथ हमारी मनोस्थिति भी द मेंटल हेल्थ
स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता और उसकी खुशनुमापन, ये दोनों हमारे साथ साथ में नहीं रहेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उसका असर पड़ता है. That is one aspect. As a student, our studies and our performance in our academic and all performances in our school life is an important aspect of our everyday life. इसके साथ साथ हमारी और भी पहलू है. हम as a student एक इंसान है, तो हमारी सामाजिक जो relationships हैं जी, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, स्कूल में, घर पे, नेबरहुड में, रिलेशनशिप्स में, रिलेटिव्स के साथ, इन सब रिश्तों में हमारी मानसिक स्वस्थता एक बहुत अहम भूमिका निभाती है जी. सो yes, mental health and well-being for students does matter. And again I will say, when our relationships around us, including the relationship with myself, जब अच्छा होता है, when it is सकारात्मक, it is positive, it is healthy, we feel happy, we feel satisfied, we feel valued and cared, and that gives us a lot of motivation to move ahead, to progress healthily. So therefore mental health and well-being does play a very significant role in a student's life. And Right. what is of importance is that in the present times, that was one very important line that you said, in the present scenario, ये बात तो हमेशा important थी, but in the present times, both as post COVID, when we are all coping with the different difficulties that we faced during the COVID time, as well as the dependence upon technological platforms, dependence upon the virtual world, जिसकी वजह से हमारी फेस टू फेस इन पर्सन इंटरेक्शन बहुत सीमित हो गई है. ये दोनों वजह है कि हम कहीं कई तरीकों से एक शेल के अंदर आ गए हैं. Right. So whenever we are interacting, we have options of interacting on the screen with another person. Right. And I just mentioned that relationships play a very important role in our mental health and well-being. तो जब relation ही हमारी एक माध्यम, और वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साथ जुड़ रहा है, जहाँ पे हम उस पर्सन को तो देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को देख रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ आमने सामने बैठ के बात नहीं कर पा रहे, भावनाओं को छुपाने का या जाहिर करने का एक माध्यम, मीडिएटर आ गया है. तो इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, knowing about what mental health and well-being is and how to ensure that we are in a frame of always being in good health in our mental and emotional well-being terms is very crucial for us, खास करके as students. राइट. और जैसे कि मैम आपने कहा कि कुछ भी हम बात कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, बेशक हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अगर हमारे दिमाग में कोई भी थॉट है जो हमें परेशान कर रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ पर आपको समझने की और सोचने की ज़रूरत है. आप किसी से भी इस बात के लिए हेल्प ले सकते हैं. आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, और जब हम बात करते हैं कि कोई हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि मेंटल हेल्थ वीक को, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को उससे जागरूक किया जा रहा है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए. जब हम इतनी बात कर रहे हैं और हम हर लेवल पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो क्या कोई is there any provision of mental well-being in our new education policy 2020? Do we have any kind of provision related with that, ma'am? Absolutely, Nuparji. There is the National Education Policy of 2020 has highlighted from its very first directive principle, जिसके ऊपर बेस करके this visionary document has been proposed. It talks about simultaneous and equal importance of the affective domain along with the cognitive domain. Affective domain is about the socio-emotional aspects which are directly linked with the mental health and well-being of students. Knowing and recognizing the important role of mental health and well-being, the policy has talked about in very clear terms in number of ways the role of counselor, the role of counseling in the school ecosystem. It talks about mental health as much as importance for physical health side by side to create opportunities for optimal learning of all the students. It has talked about
the provision of counselors as an integral resource of the school ecosystem and not as a standalone outside कि जब कोई problem होगी तब एक counselor आएगा. This also helps us to understand that mental health is not about mental ill health. It is not about when you are having an issue that I am not feeling happy or I am feeling a little stressed, I am feeling anxious, I am feeling depressed, then I go to a counselor. It is more of a preventive nature, a proactive nature that the policy talks about, and that is why the provision is made that guidance and counseling becomes an integral part of everyday functioning in the school ecosystem. And it is very heartening to share, and I am sure all in the field of education know that the new curriculum framework of school education 2023, which has recently come up, has guidance and counseling as one of the cross-cutting areas. So making it, making guidance and counseling, which is the strategy to ensure mental health and well-being for students, find a prominent place in the curriculum framework, meaning that all functionings of the school, right from the curriculum development to teaching learning process to assessment to the ethos that one creates in the school, all these will have components that will promote the mental health and well-being of students so that they are able to optimally perform not only in academics but also develop the competencies that are required in a healthy individual. Right. और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं और वो जो पिलर बना रहे उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो और फिर हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की। तो किस तरीके से अगर हम बात करें, और हमारे साथ अभी राजेश कुमार जी भी हैं प्रैक्टिसिंग काउंसलर, और ये सवाल मेरा आपसे है सर कि बच्चों का जो कांटेक्ट होता है वो ज़्यादातर होता है टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं और साथ ही साथ जिन दोस्तों के साथ वो रहते हैं जो उनका पीयर ग्रुप है। तो किस तरीके से टीचर्स, फैमिली मेम्बर्स और पीयर ग्रुप किसी भी बच्चे को कि मेंटल हेल्थ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी मैम, थैंक यू मैम। एज सुष्मिता मैम हैज राइटली सेड कि मेंटल वेलबीइंग इज नॉट द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। राइट। मैं कहना चाहूंगा जस्ट लाइक हेल्थ इज नॉट अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, इट इज आल्सो अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड सेइंग, like that. Mental health and well-being is also not the lack of mental illness. It's also about some good thoughts, positivity, empathy, how you are behaving, how you are facing the crisis moments. Mental health के वो जो definition है वो यही बताता है कि आप stress से कैसे cope up करते हैं। Right. वैसे तो हम सब normally behave करते हैं। मुझे क्लासरूम में बिठाएंगे, हम इस सेशन में भी बहुत आराम से normally behave कर रहे हैं। बट जब मेंटल हेल्थ की बात आए, वेलबीइंग की बात आएंगे, तो वो आंका जाता है जब आप किसी क्राइसिस सिचुएशन में, उस क्राइसिस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आप उससे कोप अप करते हैं, ये तय करेंगे कि आप कितने मेंटली वेलबीइंग हैं। सो आपने सही कहा, इस पार्ट के लिए स्कूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एज यू नो, स्कूल इज द प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टार्ट ग्रोइंग अप। चाहे कितने भी आप बड़े, उसमें आपकी शुरुआत जो है स्कूल से ही होते हैं। right. और स्कूल से जुड़े हुए हम सबके अपने अपने यादें होते हैं, अच्छे टीचर्स, बुरे टीचर्स थे, वो अच्छे फ्रेंड्स, बुरे फ्रेंड्स, लाइक दैट एंड ऑल। सो मेरा कहने का मतलब है अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें काफी कुछ बदलाव आ गए हैं। पहले ऐसे कुछ नहीं होते थे, पहले काउंसलर्स वगैरह हम सुनते नहीं थे, बट आजकल जो जैसे NEP 2020 के प्रोविजन में कंपलसरी कर दिया है काउंसलर्स का प्रोविजन। And I'm working as the vice principal in नवोदय विद्यालय। हमारे वहां भी 2020 से पहले कुछ नहीं होते थे। हम लोग जो NCERT से ट्रेन्ड टीचर्स होते थे, हम ही काउंसलिंग करते थे। बट नाउ द सिनेरियो हैज गॉट चेंज्ड। You have got 2 counselors, one male and one female for each Navodayas. We are having more than 650 Navodayas across country. So बात करते हैं टीचर्स के रोल, जैसे आपने बता दिया। देखिए,
जो प्रेजेंट सिनेरियो में बच्चे कहते हैं, या नॉर्मली एक होता है कि टीचर्स का रोल थोड़ा कम हो गया है इन द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ चैट जीपीटी, गूगल, वैसे वैसे होते हैं। आप टीचर्स के कुछ खास जरूरत नहीं होती आजकल के बच्चों को, जी है ना। आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप चैट जीपीटी पे जाइए, आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। मगर मेरा मानना है कि आप टीचर्स को कभी भी कहीं भी रिप्लेस नहीं कर सकते, जी because I am into this profession for the last 26 years. जब टीचर क्लास में चला जाता है और वो क्लास में एक नजर दौड़ाता है, within 5 to 10 seconds हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे सभी सही है कि नहीं। वो एक अच्छे टीचर की निशानी होती है। सो ड्यूरिंग द क्लास कोई बच्चा आपका रिसेप्टिव नहीं है, पढ़ने बुक नहीं है, वो किसी और दुनिया में सोच रहा है, वहीं से आपको पता चलेगा कि यार ही इज फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप एक अच्छा टीचर है, काउंसलर की बात छोड़िएगा, अगर आप एक अच्छा टीचर है आप उसे नोटिस करेंगे। फिर दो तरीके से हम डील करते हैं। नॉर्मली टीचर गुस्सा करते हैं, शायद मतलब डांट लगाते हैं, उसको रिब्यू कर देते हैं, उससे उसका टेंशन और बढ़ जाता है। बट एक अच्छे टीचर वही होता है, उसको नोटिस करेंगे, बाद में स्टाफ रूम में बुलाएंगे, उससे पूछेंगे। अगर आप उससे प्यार से पूछेंगे तो डेफिनेटली ही विल ओपन अप एंड ही विल कम आउट। ये एक पॉइंट है। आजकल क्या होता है, मैं वाइस प्रिंसिपल हूं, मेरे पास भी कई केसेस आते हैं, टीचर्स बड़े इरिटेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स टीचर, वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं और कहते हैं कि अब सर फाइनल रिजल्ट खराब आ जाएंगे तो हमारे एपीआर में प्रॉब्लम हो जाएंगी, ये निकम्मा है, ये बुद्धू है, ये गधा है, ऐसे। सो ये इन सब पहलुओं पर है हमें ध्यान देना चाहिए जी। मैं अपने टीचर्स को यही बोलता हूं कि आप बहुत मतलब सावधानी से डील कीजिएगा जी। तो एक ग्रुप में आप बच्चों को रिव्यू मत कीजिएगा, आप उसको अकेले में बुला लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, आप काउंसलर को रेफर कीजिएगा, बट डोंट यूज हार्श वर्ड्स ऑन दैट स्टूडेंट। और एक बात मैं कहना चाहूंगा मैम कि एज ए टीचर और एज ए काउंसलर वी डोंट हैव स्पेसिफिक सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। हम बच्चों को यही समझाते हैं कि टीचर्स और काउंसलर्स आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने की मदद करेंगे, उसको सॉल्व करना तो आपके हाथ में ही है। But generally speaking, the school, the teachers and all, not only teachers, the whole mechanism has got a vital role to play to understand the students. Intervention करना सबसे पहली बात होती है। जब आप इंटरवेन ही नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम अनसॉल्व ही रहेंगे। राइट सर। और जैसे कि आपने बात की कि काउंसलर्स हैं और काउंसलर्स हैं बच्चों के लिए, उनको देखने के लिए अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, टीचर्स हैं बच्चों के पास जो उनकी को नोटिस करते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं और अगर उनको कुछ बदलाव लगता है तो फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन क्या स्कूल लेवल पर हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, तो टीचर्स का भी एक अपना स्ट्रेस है, वो भी किसी सिचुएशन से डील हो सकता है कर रहे हो, तो क्या हाँ स्कूल भी कुछ स्टेप्स लेता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमंग टीचर्स एज वेल और स्टूडेंट्स? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपने शायद ध्यान दिया होगा शुरुआत में सुष्मिता मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर मैं और आप खुद किसी और चीज से परेशान है और हमें एक लेक्चर डिलीवर करना हो, हम अपना 100% नहीं दे सकते। दिस इज एप्लीकेबल टू टीचर्स ऑल्सो। अब मेरा टीचर है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसी भी तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं, घरेलू प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मॉनिटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली स्पीकिंग वो क्लास में जाके अपना 100% नहीं दे सके। सो इसके लिए स्कूल लेवल पे तो मैकेनिज्म डिवाइस किया है जो हम टीचर्स को प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स देते रहते हैं, इवन एनसीईआरटी भी देते रहते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी देते हैं, एंड हम लोग रेगुलर मीटिंग करते रहते हैं। एंड टीचर्स के लिए रिक्रिएशन का भी हमने प्रावधान रखा है। जैसे बोलते हैं कि मेरे स्टाफ रूम में एक बहुत बड़ा टीवी है, उसमें न्यूज चलते रहते हैं, एंटरटेनमेंट चलते रहते हैं। टीचर्स को बोलते हैं कि जब आपका फ्री पीरियड हो आप थोड़ा सा टीटी खेलिएगा, कैरम खेलिएगा, न्यूज देखिएगा, हो सके तो आप थोड़ा गाने भी सुन लीजिएगा, अपने आप को रिफ्रेश कीजिएगा। तो ऑल द पर्पस इज कि टीचर्स टेंशन फ्री रहें, खुशनुमा रहें और अपना 100% रिजल्ट दें। I'll just add a line to this is that we say that a happy teacher
means a happy classroom, a bunch of Yeah, happy absolutely. students. So Right. when Yeah, our bilkul, teachers, it bilkul. all, we are all connected by a thread, and that thread, जी, the जी. common thread is the happiness thread. Yes, Yes, definitely. yes, yes. और अगर यहाँ पे एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँ डॉक्टर सुष्मिता, और वो यही है कि जब हम बात करते हैं आज की, और हम सिनेरियो देखते हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो है, कि हम जो ज़्यादातर वक्त है हमारे साथ, तो पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन एक और चीज़ जो हर वक्त हमारे आसपास रहती है वो है सोशल मीडिया, और बहुत टाइम हम उस पर देते हैं, कंज्यूम करता है वो हमारा टाइम। तो सोशल मीडिया को हम किस तरीके से इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। बच्चे अगर कुछ आपको देखना है और आप बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मुझे ये देख लेना चाहिए, तो आप वहाँ चले जाते हैं। लेकिन क्या ये बहुत मायने रखता है मैम कि कितना स्क्रीन टाइम आप दे रहे हैं, आप क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, और क्या वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं आपके स्ट्रेस में, आपके एंजाइटी में? कई बार आपको बहुत रिजेक्शन फील होता है, ये कुछ फैक्टर्स सोशल मीडिया से क्या रिलेट किए जा सकते हैं? Definitely, Nupur. Social media and the time we spend on the social media, it's literally consuming us up. You know, to the extent that हम बड़े हों या छोटे by means I'm saying students, you know, students of say middle stage, secondary stage, senior secondary stage, यहाँ तक आज तक कल तो I think even in the preparatory stage, class 1 to 3rd grade के बच्चे भी, we need a smartphone. But the smartphone is required for, of course, educational purposes हैं, but वो educational purposes से कब जाके वो entertainment के ज़रिया बन जाता है और communication, interaction का ज़रिया बन जाता है, ये हमें पता भी नहीं चलता है. To the extent क्या हो जाता है, अभी nowadays we all see, even I as a person and I'm sure all of us in and around, 2 मिनट अगर मिल गया टाइम, तो first thing is pick up the phone, start seeing कि किसका क्या आया है, कुछ मेल आया है, कुछ मैसेज आया है, किसी का स्टेटस में अपडेट हुआ है, एंड देन दैट काइंड ऑफ ट्रिगर्स ऑफ, अच्छा स्टेटस देख लिया तो कुछ कमेंट डालना पड़ेगा, कमेंट नहीं डाला देन बाय दैट इन इवनिंग ऑफ द डे यू नो यू विल स्टार्ट गेटिंग मैसेजेस, व्हाई डिडंट यू गिव सम कमेंट ऑन माय पोस्ट, क्या कुछ नाराज हैं आप, लाइक दिस. सो ऑल दीज थिंग्स लीड टू व्हाट, lead to what I said in the beginning, that there is a mediator in my interaction with the world. Right. And because of that, there are chances of much of miscommunication. If I am wishing today my friend, my brother, my sister in person, that is not as much important as posting a happy birthday wish on the Facebook or the Insta or the Twitter or in the WhatsApp. You know, वहाँ पे भी post करना ज़रूरी है. Why? Because that will show how much I am loved. Now this parameter of my social needs, of you know, of belongingness, of bonding, Right. through the evidence on the social media is what is disturbing, and what makes the young generation, particularly the students, are guided by that. Their relationships break or form on the number of, you know, likes, dislikes, approval, comments on the media. Right. Therefore नहीं आता है तो बड़ा दुखी हो जाते हैं कि मेरे यू नो वॉट एवर आई हैव पोस्टेड उसमें किसी का कमेंट नहीं आया, उसमें उसका फलाना दैट पर्टिकुलर फ्रेंड का मेरा कुछ नहीं आया, he or she hasn't written anything. That means what? It indicates that he or she doesn't love me. Right. So that gives a stress, that gives an anxiety. The friendship relation between this student and that person breaks up just because of one factor, which may have been caused by very many reasons that this person did not note it. Right. और अगर नोट भी किया होगा तो it is not so very precious that the relationship breaks down. It also has opened up the social media addiction. I won't say addiction, but over dependence, emotional dependence on social media has led to the factor of too much of cyber bullying. Right. This Blocking somebody on the social media platform, running a you know kind of a gossip chain on the social media about somebody's some behavior, some action, something that was told. All these creates tremendous stress, emotional Mental harm to the student, which they don't know how to handle for.
Right. And of course, on another hand, because of all these things going on, they experience the trouble inside, but they are not able to share it with right. anyone in the form, you know, either with their peer or with their parent or with the teacher. Parents and teachers think, "Arey, what, this is nothing great, nahi like kiya hoga, has not committed something, commented something, theek hai, it's okay." We don't understand how the student is feeling. Yeah. Peer group में share करना है तो they don't know whom to trust. Yes. So it's a big dichotomy that the students face emotionally, and that is the reason why social media interaction has an impact upon the students' mental health and well-being. राइट तो यहाँ पर बिल्कुल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा कि और भी बात करें, लेकिन बहुत ही इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर यू एक्सप्लेन थिंग्स मैम एंड सर, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. और आप भी शेयर करें अगर कुछ भी है आपके मन में, अगर आपको कोई भी बात परेशान करती है, ये बात सबके लिए हो सकती है, टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी, तो ज़रूर शेयर करें और काउंसलर्स से जाके आप हेल्प ले सकते हैं. आप सिंपैथी नहीं लेकिन एम्पैथी सबके लिए रख सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुष्मिता एंड राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए. इसी के साथ अब मैं नुपुर श्रेष्ठ आपसे लेती हूँ इजाज़त. नमस्कार. नमस्कार. थैंक यू. और मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल. तन और मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल. काउंसलर को बताए अपना हाल, काउंसलर को बताए अपना हाल, जो सुने हमारे मन के सवाल. सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन. सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन. मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632. नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632.